Hello children, you are welcome to the Digi classes of Christ Church Convent, Gadawara. This video is for class 11th, subject is accounts. We are starting chapter number 4, accounting equation and rules of accounting. This is first part. Children, in last two chapters, you studied that in double entry system, for every transaction there is a debit and corresponding credit. It means the total of debit side is equal to total of debit side. So we can derive one thing, total of debits amount is equal to total of credits amount. Okay. It means that if business owns something, it also owes something to others. Therefore, the total of assets of the business is equal to the total of liabilities. Now, you remember terminology of chapter number 1. When we were dealing about liabilities, you were explained liabilities of two types. The first, internal liability, that is capital of the business invested by the owner of the business. And second liability is external liability like creditors, bankers and other parties, third parties. Okay. So the base of accounting equation says that the total of the assets of firm is always equal to total of its liabilities. And therefore, when the final statement is made, that is called a balance sheet, so there you find that the total of both the sides must be equal. And this is what called accounting equation or balance sheet equation. It means on the basis of it, any transaction affects assets side in the left hand side of the equation, and there will be effect on the liability side, that is right hand side of the equation. So you are given an example here. कोई एक ओनर है, वो इन्वेस्ट कर रहा है 50,000 रुपए बिजनेस शुरू करते समय, फिर उसने 30,000 रुपए का गुड्स यानी कि उसमें माल भर लिया, फर्नीचर लगाया 20,000 का. सो दिस इज ऑल इन्वेस्टमेंट एंड दीज आर द असेट्स ऑफ द बिजनेस. तो on the asset side you will add these three, cash plus goods plus furniture, that comes to 1 lakh. So this is what the capital invested by the owner at the time of establishing his business. So that comes to equal to total capital of the owner. Understand? Now you understand. You have to learn these assets and liabilities names so that there will not be any confusion when we will talk about accounting equation and which head has to be written on asset side and which head is to be written on liability side. So you will be well aware of that. So learn that. Means what are the assets of a business. Assets means property. So you remember assets, fixed assets and current assets. So let me introduce assets first. कैश इन हैंड यानी आपकी गुल्लक में तिजोरी में कितना पैसा रखा है. कैश एट बैंक, बैंक में कितना डिपॉजिट है आपके पास.
in your account or in forms of FDRs. Debtors from whom you have to collect money, you have to receive money. It means third party owes you, जिनसे तुमको पैसा लेना है, यानी बिजनेस को. ठीक है. फोर्थ, bills receivable. Bills receivables are such written documents for which third parties have given acceptance that in course of time, in a certain period of time, they will pay you money. आपको पैसा देंगे. इनको आप चेक मान सकते हो. अभी नॉर्मल लैंग्वेज में इसको आप चेक, एक्चुअली दीज आर नॉट चेक्स, बट यू कैन, अभी समझने के लिए आप इसको ऐसा मान सकते हो कि चेक्स हैं. आपको पेमेंट लेना है, उन्होंने आपको एक पोस्ट डेटेड चेक दे दिया है कि हम इतने समय के बाद आपको पैसा देंगे. दे हैव गिवन एक्सेप्टेंस ऑफ पेइंग मनी. Then investments, either in funds, mutual funds, shares and others, or in the form of fixed assets. For closing stock, the goods which is remain unsold at the last day of a particular financial year is called closing stock. आपकी गोडाउन में कितने रुपए का माल रखा हुआ है, वो तुम्हारी प्रॉपर्टी है, असेट्स है. लैंड एंड बिल्डिंग, बिजनेस के पास कितनी जमीन है, उसकी बिल्डिंग की कीमत क्या है, वो उसकी एसेट है. प्लांट एंड मशीनरी, जो भी प्लांट या मशीन्स लगी हुई हैं वो बिजनेस की प्रॉपर्टी है. इक्विपमेंट यानी कि उपकरण वगैरह, छोटे मोटे कोई औजार वगैरह जो स्टोर्स में रखे हुए हैं, टूल्स. फर्नीचर एंड फिटिंग्स, तो ये भी बिजनेस की असेट्स कहलाती हैं. प्रीपेड एक्सपेंसेस मींस एडवांस में आपने किसी को पैसा पहले से दे दिया है. इफ द वर्क इज नॉट डन यू विल रिसीव योर मनी बैक, इसलिए ये असेट्स मानी जाएगी, वो आपका कैश है एक प्रकार से. बट until the work is not done, it means you are not receiving its worth, so that will be your asset. तुमने किसी को एडवांस दे के रखा, उसने काम नहीं किया, तो उससे अपना पैसा वापस ले सकते हो तुम, इसलिए इसको अपन कैश फॉर्म में मानेंगे और ये तुम्हारी एसेट कहलाएगी बिजनेस की. देन accrued income, the income which is earned but not received in the form of cash. कमा लिया है लेकिन अभी तक मिला नहीं है. तुमने किराए से किसी को दुकान का एक हिस्सा दे रखा है और उसको अभी 3 महीने का उसने किराया तुमको नहीं दिया, वो तुम्हें मिल जाना था, अभी तक हर महीने मिलना था, बट ही डिड नॉट पे. सो इट मीन्स द बिजनेस हैज ऑलरेडी अर्न्ड दैट इनकम बट नॉट रिसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ कैश. तो दिस इज योर प्रॉपर्टी, दिस इज योर असेट. गुडविल मीन्स रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस, इट्स प्रेस्टीज, सो इट कंसीडर्ड. फिर ये हम आपको पहले बता चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में, कि असेट्स आर डिवाइडेड इनटू फिक्स्ड असेट्स. फिक्स्ड मतलब जो कि बिल्डिंग, लैंड, फर्नीचर वगैरह होता है. फ्लोटिंग असेट्स लाइक गुड्स, सर्विसेज, है ना, टूल्स, इक्विपमेंट्स. फिक्शियस असेट्स जिनके बारे में केवल कहा जाता है लेकिन वो हैं या नहीं पता नहीं, लाइक गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, है ना, जो दिखाई नहीं देते, ट्रेडमार्क, रॉयल्टी एटसेट्रा. इंटेंजिबल ऑल्सो. एंड लिक्विड असेट्स मीन्स कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स लाइक चेक, चालान्स, ड्राफ्ट्स. नाउ विल टॉक अबाउट लायबिलिटीज, यानी कि बिजनेस की देनदारियां. तो पहला रहेगा क्रेडिटर्स, टू whom business will pay money, and bank OD, it means you have withdrawal money more than the amount deposited in your account, or you have made a cash credit limit from the bank. ये एक प्रकार से लोन हो सकता है बिजनेस का. देन बिल्स पेएबल,
the parties to whom business has given acceptance to pay money in future. Bills payable is a liability. बिजनेस को पैसा चुकाना उन लोगों का बाद में कभी. बैंक लोन सिंपल सी बात है, ये तो लायबिलिटी है ही, कर्जा ले रखा है. Debentures, this term is normally used in case of companies because companies cannot issue shares more than their authorized capital. In that case, they can issue debentures, for which we shall study in detail in class 12th. But debentures means ऋण पत्र. लोगों से कर्जा लिया, उनको एक सर्टिफिकेट दे रखा है कि हाँ हमने आपसे इतना पैसा लिया, इतने सर्टेन अमाउंट से हम आपको ब्याज देंगे वगैरह वगैरह. रुखा टाइप जिसको आप कह सकते हो, स्टाम्प पेपर पर लिख के दे दिया. देन एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड EPF, तो ये बिजनेस की लायबिलिटी है. वो पैसा बिजनेस को देना है. किसको देना है? एम्प्लॉयज को चुकाना होता है. एंड एनी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस which are unpaid so far, so ये liability है. फिर कैपिटल, इसके बारे में अपन बहुत बार बात कर चुके हैं. Whatever is invested by the owner into the business in the form of cash, goods or assets is considered as capital. So these are liabilities of business. Internal liability होती है because owner only is the person who bears all the risk and uncertainties of the business to earn profit. ठीक है. और जब कभी कोई एक्सपेंस वो अपने खुद के लिए करता है, पर्सनल या ड्राइंग्स लेता है, तो वो क्या कहलाती हैं? उसकी जो कैपिटल है इट गेट्स रिड्यूस्ड. और यदि वो कोई एडिशनल इनकम करता है, बिजनेस को प्रॉफिट होता है या एडिशनल कैपिटल वो बिजनेस में लेके आता है या प्रॉफिट हो जाता है बिजनेस को, so his capital increase normal. Now you are seeing some formulae. These are the very important formulae without which chapter number 4 and its numerical will not be possible to solve. You learn these formulae very well so that you can solve the questions. टोटल असेट्स टोटल लायबिलिटी के इक्वल होती है, ये भी हमने सबसे पहले आज इस वीडियो में आपको बता दिया. एक्सटर्नल लायबिलिटी यदि निकालना है तो असेट्स में से कैपिटल को माइनस कर दीजिए. देन ऑल द लायबिलिटीज कैपिटल प्लस प्रॉफिट प्लस इनकम इज इक्वल टू ऑल द असेट्स प्लस एक्सपेंसेस प्लस लॉसेस. कैपिटल निकालना है तो A माइनस L है ना. विच L मीन्स लायबिलिटी. विच कौन सी लायबिलिटीज? एक्सटर्नल लायबिलिटी को माइनस कर दो. इन दोनों 5th और 6th के बारे में अपन कई बार बात कर चुके हैं. जितने भी डेबिट बैलेंसेस हैं वो क्रेडिट बैलेंसेस के बराबर होंगे और उनके टोटल्स भी उनके क्रेडिट टोटल्स के बराबर होंगे. 7th फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अब से शुरू होगा, ये आखिरी तक जाएगा. इसको बहुत अच्छे से याद करना. 7, 8, 9, 10. ठीक है. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यदि आपको पता करना हो कि जितने का आपने माल बेचा था उसकी कीमत क्या रही होगी, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक दैट इज इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर प्लस नेट परचेस. नेट परचेस कम्स कैश परचेस प्लस क्रेडिट परचेस माइनस परचेस रिटर्न एंड विथड्रॉ ऑफ गुड्स फॉर पर्सनल यूज. उससे नेट परचेस आ जाता है, जो नीचे फॉर्मूला तुम्हारे पास लिखा हुआ है एक उसका, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक वॉट एवर रिमेन्स विद द बिजनेस इन गोडाउन. फिर नेट परचेस पहले बात हो चुकी, इसके बारे में नेट सेल्स के बारे में भी बात हो चुकी है, दोनों फॉर्मूले. नेट प्रॉफिट निकालने के लिए ग्रॉस प्रॉफिट में से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस यानी कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करना होंगे, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब विदाउट विच द फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस इज नॉट पॉसिबल. और ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए जो भी सेल्स हुआ है उसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर दीजिए. एडवांटेज क्या होगा इसके? सबसे पहला हो गया कि ये अकाउंटिंग में हेल्प करता है, ट्रायल बैलेंस बनाने में हेल्प मिल जाती है, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी पता चल जाती है,
इससे हम असेट्स और लायबिलिटी के बारे में पता कर सकते हैं और ग्रॉस और नेट प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो टर्म्स आ रही हैं एक्सपेंस, तो एक्सपेंस है ना कि खर्चे। अब खर्चे कौन कौन से हो सकते हैं? सैलरी देना है, वेजेस है ना, मजदूरी चुकाना है, इंटरेस्ट, रेंट, स्टेशनरी। ठीक है, तो ये खर्चे जो होंगे वो कैश में यदि पे किए जा रहे हैं तो बिजनेस की जो असेट्स है यानी कि कैश वो कम हो जाएगा और इससे उस बिजनेस की जो इनकम है वो अफेक्ट होगी। तो जब इनकम इफेक्ट होगी तो बिजनेस का प्रॉफिट जो होगा वो भी रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, और जो भी प्रॉफिट होता है वो कहां जाकर ऐड होता है? कैपिटल में जाकर ऐड होता है बिजनेसमैन की। तो जब भी कभी एक्सपेंस या लॉस जो होता है वो बिजनेस की कैपिटल को भी रिड्यूस करेगा, प्रॉफिट को भी रिड्यूस करेगा और रेवेन्यू को भी रिड्यूस कर देगा। ठीक है, दूसरी बात आ रही है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की। ये वो हैं जो खर्चे तो हो गए हैं लेकिन अभी अपन ने उनको पे नहीं किया कैश के फॉर्म में। ऐसा करने से अपना कैश कम नहीं हुआ और वो पेएबल अपना बना हुआ है। मतलब क्या हो जाएगा, आप लायबिलिटीज जो होंगी वो इंक्रीज हो जाएंगी। तो जितने भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होते हैं वो हमारी कैपिटल को डिक्रीज कर देते हैं, आज नहीं तो कल उनको देना है, बिजनेस की लायबिलिटीज है। फिर नेक्स्ट है प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड, these are the expenses which have been paid for this year but are related to the next accounting year. आपने इस साल पे कर दिए हैं बट दे आर नॉट एक्सपायर्ड, दे विल बी कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। तो ये बिजनेस की असेट्स कहलाएंगे, है ना? क्या कहलाएंगे? असेट्स, क्योंकि ये इस साल के नहीं है। ओके, तो हमारी एक असेट इंक्रीज हो जाएगी इससे। क्या? जो भी हमारे पास है वो प्रीपेड एक्सपेंस के नाम से हम उसका एक अकाउंट बना देंगे जो असेट्स के कॉलम में शो होता है। लेकिन हमारी दूसरी असेट जो है वो रिड्यूस हो गई है, वो है कैश। हमने पहले ही पैसा दे दिया उनको एडवांस में, तो हमारी एक असेट जो होगी वो रिड्यूस हो जाती है। नेक्स्ट है रेवेन्यू रिसीट्स। तो रेवेन्यू रिसीट्स वो रिसीट्स हैं जो बिजनेस को अक्रल बेसिस पे मिलती रहती हैं, है ना, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी के थ्रू मिलती रहती हैं और हर दिन होती हैं ये और रेगुलर होती हैं ये इनके जो एग्जांपल्स अपन ऐसा बोल सकते हैं जो अपन को ट्रेडिंग के अलावा जो दूसरी आमदनी होती है, जैसे इंटरेस्ट मिल जाना, कमीशन मिल जाना, डिस्काउंट रिसीव होना, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो इनके होने से क्या होगा, तुम्हारी असेट्स में से कौन सी चीज़ बढ़ जाएगी? कैश। कैश इंक्रीज हो जाएगा तुम्हारा, और कैश इंक्रीज होने के साथ साथ कैपिटल भी, क्योंकि ये क्या है, रेवेन्यूज। जो भी रेवेन्यू गेन या प्रॉफिट होता है उससे हमारी कैपिटल इंक्रीज हो जाती है, तो ये कैपिटल में जाके प्लस हो जाएगा और कैश में जाके भी प्लस हो जाएगा। फिर है एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम वो इनकम है जो हमने कमा ली है लेकिन अभी तक मिली नहीं है। कुछ भी हो सकता है, अभी हमने आपको एग्जांपल दिया था, रेंट है, इंटरेस्ट है, ऐसा कुछ भी। तो हमारा जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो जाता है और कैपिटल भी इंक्रीज होती है, लेकिन रिसीव नहीं हुई है हमारे पास अभी ये, तो कैपिटल में जाके तो ये प्लस होगी, है ना। और हम असेट्स के कॉलम में इसको अलग से एक कॉलम बना के लिख देते हैं, हेड बना के लिखते हैं एक्रूड असेट्स, या जो भी उसका नाम होता है वो एक्रूड इनकम के फॉर्म में लिख देते हैं उसको। नेक्स्ट है अनअर्न्ड इनकम। अनअर्न्ड मीन्स विच ऑलरेडी हैज बीन रिसीव्ड इन फॉर्म ऑफ कैश बट इट इज नॉट ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर। वो इस साल की नहीं है, बस पैसा अपन को उसका मिल गया, यानी ये हमारी बिजनेस की क्या है, लायबिलिटी है, और कैश इंक्रीज हो जाएगा। तो दो जगह फिर इम्पैक्ट आ गया, असेट्स में हमारे पास कैश बढ़ जाएगा लेकिन वो इस साल का नहीं है, इसलिए वो लायबिलिटी भी कहलाएगा, तो लायबिलिटी भी हमारी इंक्रीज हो जाएगी। ओके।